Hello students, welcome to my channel Let's Study. Today we will do 50 most important MCQs of chapter Federalism of Civics, class 10th. So let's start the video. First question is, Dash is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Option A, dictatorship, B, unitary system, C, monarch, D, federalism. Right option is D, federalism. Question number 2. How many levels of government does the federation usually have? Option A, single, B, 2, C, 3, D, multiple. Right option is B, 2. Question number 3. How many countries in the world have a federal political system? Option A, 42, B, 33, C, 25, D, 18. Right option is C, 25. Question number 4. The Constitution of India. According to Constitution of India, option A, divided power between center and state in 3 lists. B, divided power between center and state in 2 lists. C, listed the powers of the states and left the undefined power to the states. D, specified the powers of the states and left the residuary power with the center. So right option is, fourth का right answer है A. Divided powers between center and state in 3 lists. 3 लिस्ट में स्टूडेंट फर्स्ट यूनियन लिस्ट होती है, सेकेंड स्टेटलेस लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट. क्वेश्चन नंबर 5. स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच? स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है जो. ऑप्शन ए, इट इज आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल होती है. बी, इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है. सी, इट इज आंसरेबल टू द पीपल, वो लोगों के प्रति आंसरेबल है. डी, बी एंड सी. सो राइट ऑप्शन इज डी, बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 6. Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own dash in specific matters. Option A, administration, B, jurisdiction, C, execution, D, policies. Right option is B, jurisdiction. Question number 7. In case of a clash between the laws made by the center and state on a subject in the concurrent list, अगर किसी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर स्टेट और सेंटर के बीच में क्लैश हो जाता है, यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस वक्त उस सब्जेक्ट पर कौन रूल बनाएगा, यानी लॉ कौन बना सकता है. ऑप्शन ए, द स्टेट लॉ प्रिवेल्स, बी, द सेंटर लॉ प्रिवेल्स, सी, बोथ द लॉ प्रिवेल्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, D, the Supreme Court has to intervene to decide. So right option is the central law prevails. So right option is B. अगर किसी कंकरेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर सेंटर और स्टेट लेवल में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की आ जाती है. सेंटर को ये स्पेशल राइट मिलता है कि वो उस मैटर को हैंडल करे. क्वेश्चन नंबर 8. When independent states come together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federation are practiced by which countries? Coming together का मतलब क्या होता है? Coming together फेडरलिज्म होती है जब छोटी छोटी यूनिट्स एक बड़ी यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट को बनाती हैं. दैट इज कॉल्ड द कमिंग टुगेदर फेडरेशन. तो ये किन किन कंट्री में लागू है? ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड एंड कनाडा, बी, यूएसए एंड ब्रिटेन, सी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, डी, ब्रिटेन, कनाडा एंड यूएसए. राइट ऑप्शन इज सी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड. स्टूडेंट,
इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यूएसए ही बनती है, यूएसए, एस स्विट्जरलैंड, ए ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूएसए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, वेयर अ लार्ज कंट्री decide to divide its power between the constitution, state and the national government, it is called holding together federation. Which country practice this system? जब एक यूनिट अपनी पावर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्लियर? जब एक बड़ी यूनिट टूटकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसे कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस है? ऑप्शन ए इंडिया, पाकिस्तान, इटली, बी इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, सी कनाडा, इटली, जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। राइट ऑप्शन इज बी इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया? कौन सा सब्जेक्ट इनमें से यूनियन लिस्ट के अंडर आता है? ऑप्शन ए पुलिस, बी एग्रीकल्चर, सी बैंकिंग, डी ट्रेड। सो राइट ऑप्शन इज सी बैंकिंग। स्टूडेंट्स, यूनियन लिस्ट के अंडर जो मैटर आते हैं, जो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो जो नेशनल बेनिफिट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको उसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे बैंकिंग, फॉरेन मैटर्स, करेंसी। ये सब मैटर किस में आएंगे? यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन कम अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए डिफेंस, सी करेंसी, बी करेंसी, सी कम्युनिकेशन, डी पुलिस। जैसे अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया, डिफेंस जो है नेशनल लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस है उसकी, तो उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो वो यूनियन लिस्ट के अंडर आता है। सी करेंसी, वो भी यूनियन लिस्ट के अंडर आएगा। सी कम्युनिकेशन, डी पुलिस। पुलिस जो स्टेट लेवल के अंडर आता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी पुलिस। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज? ऑप्शन ए करेंसी, बी डिफेंस, सी ट्रेड यूनियन, डी एग्रीकल्चर। सो राइट ऑप्शन इज सी ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन बाय रेजिडरी सब्जेक्ट? रेजिडरी सब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑप्शन ए सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट अंडर बोथ स्टेट एंड यूनियन लिस्ट, डी सब्जेक्ट विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। रेजिडरी सब्जेक्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं? जो यूनियन लिस्ट के अंडर में हो, बी जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हों, सी जो दोनों में आते हों, और डी जो किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। सो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं, ना ही यूनियन लिस्ट में, ना सब्जेक्ट में, स्टेट लिस्ट में, और कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं आते हैं, वो मैटर रेजिडरी सब्जेक्ट्स के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सब्जेक्ट अंडर द रेजिडरी लिस्ट। ऑप्शन ए करेंसी, बी इरिगेशन, सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी कॉमर्स। सो राइट ऑप्शन इज 14 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम enjoy special power under certain provisions of a Constitution of India, Article 371. Under which context do they get these provisions? Option A, because of trade and commerce, B, protection of land rights of indigenous people, C, special provisions of agriculture, D, for defense purposes. Right option is B, protection of land rights of indigenous people. Question number 16, give one features of union territories. यूनियन टेरिटरीज का एक फीचर बताइए। ऑप्शन ए, दे हैव पावर ऑफ अ स्टेट्स, बी, दे एंजॉय इंडिपेंडेंट पावर्स, सी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर in running this area, D, these are areas which are too small to become an independent state but which can be merged with any of the existing states.
सो राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है सी. The central government has special powers in running these areas. Question number 17. Sharing of powers between the union governments and the state government is basic to the structure of the constitution. The parliament cannot on its own change this agreement. Any change to do it has to be first passed by both the house of parliament with at least dash majority. Option A 50%, B 3/4, C 2/3, D 25%. So right option is C 2/3. किसी भी बिल को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 की मेजोरिटी होना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 18. The creation of dash was the first and major test of democratic policies in our country. Option A, state according to religion, B, state according to culture, C, linguistic state, D, state according to topography. Creation of dash was the first. After independence, हमारी कंट्री को पॉलिटिकल नई स्टेट बनाने के लिए किस बेस पर प्रॉब्लम आई थी? स्टेट अकॉर्डिंग टू रिलीजन्स, स्टेट अकॉर्डिंग टू कल्चर, लिंग्विस्टिक स्टेट, स्टेट अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी. तो राइट आंसर है सी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स. क्वेश्चन नंबर 19. ऑन विच बेसिस वर स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएटेड? ऑप्शन ए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बी, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एथनिसिटी, सी, on the basis of religion, D, on the basis of commerce and trade. So right option is B. Question number 20. Hindi is the mother tongue of only about percent of India. A 60%, B 30%, C 40%, D 50%. So right option is C 40%. Question number 21. Besides Hindi, there are other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. Besides Hindi, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखिए, besides हिंदी बोला है, यानी हिंदी को छोड़कर और कितनी लैंग्वेजों को शेड्यूल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है, से में पहचान मिली है. ऑप्शन ए 21, बी 23, सी 27, डी 24. सो राइट ऑप्शन इज ए 21, यानी टोटल शेड्यूल लैंग्वेज 22 हैं. अगर हिंदी को उसमें से निकाल दिया जाए तो कितनी बन जाएंगी? 21. क्वेश्चन नंबर 22. When was the beginning of the era of coalition government at the center which led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments? कोलिशन गवर्नमेंट का इरा कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए 1980s, बी 1990s, C 1870s, D 2000 onward. So right option is B 1990s. कोलिशन गवर्नमेंट का स्टूडेंट स्टार्ट कब हुई थी इंडिया में? 1990s. और कोलिशन गवर्नमेंट होती क्या है? कोलिशन गवर्नमेंट का है when different political parties come together to form a government. That is called the coalition government. Question number 23. Census of India held in 2011 recorded more than dash distinct language which people mentioned as their mother tongues. 2000 की जो जनगणना हुई थी उसमें कितने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को काउंट किया गया था जिन्हें लोग अपने मदर टंग कहते थे? ऑप्शन ए 200, बी 500, सी 1200, डी 1300. तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है डी 1300. 1300 ऐसी लैंग्वेजेस काउंट की गई जिन्हें लोग अपनी मदर टंग मानते थे, और उसमें से 33 ऐसी लैंग्वेजेस थी जो लेस देन 1 लाख पीपल के द्वारा बोली जाती थी. क्वेश्चन नंबर 24. In the data of scheduled languages of India, which is the second highest in proportion of speaker in percentage after Hindi? हिंदी के बाद ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सेकंड हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज बनती है इंडिया में? ऑप्शन ए तेलुगु, बी तमिल, सी बंगाली, डी उर्दू. सो राइट ऑप्शन इज सी बंगाली. क्वेश्चन नंबर 25.
As for English, only -% Indian recorded it as their mother tongue. कितने परसेंट लोग इंडिया में इंग्लिश को अपनी मदर टंग बोलते हैं? ऑप्शन ए 20%, बी 5%, सी 0.5%, डी 0.02%. सो राइट ऑप्शन इज डी 0.02%. Question number 26. The distinguished feature of federal government is option A. National government gives some power to the province government. B. Power is distributed among the legislature, executive and judiciary. C. Elected official exercise supreme power in the government. D. Governmental power is divided between different level of governments. So right option is D. फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? जहाँ पे पावर लेवल्स में डिवाइड होती है. ये लोकल लेवल, स्टेट लेवल और यूनियन सेंट्रल लेवल. सो सेंट्रल लेवल और वी कैन से यूनियन लेवल. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27. कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट. इन फेडरेशन द पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डेमोक्रेटेड. बी India is a federation because the power of union and state government are specified in the constitution and they have exclusive jurisdiction on their respective subject. 3. Sri Lanka is a federation because the country is divided into 2 provinces. 4. India is no longer a federation because some powers of the state have been devoted to the local government bodies. So question number 27 का right answer है C. 1 and 2 only. Question number 28. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. It is called option A state office, B district government, C local government, D तहसील. Question number 28 का right answer है C local government. फेडरल गवर्नमेंट में एटलीस्ट कितने लेवल्स होते हैं? 2 लेवल्स होते हैं. लेकिन इंडिया में एक थर्ड लेवल की नीड हुई, जिसे क्या नाम दिया गया थर्ड लेवल को? लोकल गवर्नमेंट. क्लियर? तो थर्ड लेवल की नीड हुई जिसका नाम क्या है? लोकल गवर्नमेंट. Question number 29. When was the constitution amendment to make a third tier of democracy more powerful and effective? कॉन्स्टिट्यूशन में कब अमेंडमेंट किया गया? अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कब सुधार किया गया? सुधार करके थर्ड टायर बनाया गया और डेमोक्रेसी, ताकि डेमोक्रेसी और पावरफुल हो सके. ऑप्शन ए 1990, बी 1992, सी 1989, डी 1993. सो राइट ऑप्शन इज 1992. यानी इंडिया में 1992 में अमेंडमेंट किया गया. जो कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd एंड 74th. 73rd एंड 74th अमेंडमेंट था, जिसके अकॉर्डिंग एक थर्ड टायर यानी थर्ड लेवल को स्टार्ट किया गया, जिसका नाम रखा लोकल गवर्नमेंट. Question number 30. In the local government election, at least dash of all positions are reserved for women. Option A 1/3, B 2/3, C 50%, D 25%. So right option is 1/3. Question number 31. How many subjects come in union list? Option A 97, B 55, C 60, D 75. यूनियन लिस्ट के अंडर कितने सब्जेक्ट आते हैं? ऑप्शन ए इज राइट 97. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज? गवर्नमेंट के थर्ड टायर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विलेज पंचायत, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डी जिला परिषद. क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Question number 33. What is true regarding sources of revenue in a federal system? Option A. States have no financial powers or independent sources of revenue. B. States are dependent on revenue or fund on the central government. C. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy.
D. States have no financial autonomy. Question number 23 का right answer है C. Sources of revenue for each level of government are clearly specified. Question number 34. Which period saw the rise of regional political parties in many states of the country? Option A, period after 1990s, period after 2000, C, period after 1980, D, period after 1970. So right option is 34 का right option है A, after 1990s. इसी में क्या किया था, कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी. Question number 35. Which languages is recognized as the national language by Constitution of India? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी तमिल, डी नन ऑफ दीज. सो राइट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दीज. स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिए कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. नो नेशनल लैंग्वेज. क्लियर? Question number 36. How many subjects are included in state list? State list में कितने subject include हैं? Option A 97, B 66, C 37, D 13. So right option is B 66. 66 subjects are included in state list. Question number 37. Which two constitutional amendment of 1992 deal with local self-government? Option A 73rd and 74th, B 75th and 76th, C 85th and 86th, D 10th and 11th. So right option is A 73rd and 74th. Question number 38. The system of Panchayati Raj involves. पंचायती राज का सिस्टम जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए विलेज, स्टेट एंड यूनियन लेवल, बी विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, सी विलेज एंड स्टेट लेवल, डी विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. राइट ऑप्शन इज डी, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. पंचायती लेवल में जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके भी 3 लेवल्स बनाए गए हैं. फर्स्ट लेवल पे आता है डिस्ट्रिक्ट पे, देन ब्लॉक एंड लास्ट में विलेज पंचायत. क्लियर? सो विलेज पंचायत इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, देन ब्लॉक एंड अपर यूनिट इज डिस्ट्रिक्ट. Question number 39. What is the government at block level called? Option A ग्राम सभा, B ग्राम पंचायत, C पंचायत समिति, D न्याय पंचायत. 39 का राइट आंसर है C पंचायत समिति. ब्लॉक समिति जिसे भी कहा जाता है, तो ब्लॉक लेवल पे क्या होती है? ब्लॉक समिति या पंचायत समिति. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉल्ड? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जिला परिषद, बी ग्राम पंचायत, सी पंचायत समिति, डी न्याय पंचायत. सो राइट ऑप्शन इज ए, जिला परिषद. व्हाट इज द गवर्नमेंट एट विलेज लेवल कॉल्ड? विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी पंचायत समिति, डी न्याय पंचायत. सो राइट ऑप्शन इज बी, पंचायत, ग्राम पंचायत. 42. A body comprising of all adult members of a village or a group of villages called? ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी पंचायत समिति, डी न्याय पंचायत. A body comprising of all adult members of a village of a group of village is called a ग्राम सभा. जितने भी गांव के विलेज के अडल्ट मेंबर्स होते हैं, यानी जो वोटिंग का राइट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ ग्राम सभा. ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन नंबर 43. इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द 22 शेड्यूल लैंग्वेज इंक्लूडेड? ऑप्शन 8 शेड्यूल, बी 10th शेड्यूल, सी 12th शेड्यूल, डी 9th शेड्यूल.
क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है 8th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मच ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज हिंदी एज इट मदर टंग? ऑप्शन ए 60%, बी 50%, सी 44%, डी 30%। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है सी 44%। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन वाज द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस स्टॉप्ड? इंग्लिश का एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज को बैन कर दिया गया था, वो कब किया गया था? ऑप्शन ए 1956, बी 1958, सी 1960, डी 1965। सो राइट ऑप्शन इज डी 1965। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन 1965 में इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बैन कर दिया गया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही इसे दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया था। बस 1 साल के लिए इसे बैन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड? हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 47, हेड ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी इज कॉल्ड? ऑप्शन ए सरपंच, बी चेयरमैन, सी चीफ मिनिस्टर, डी मेयर। सो ध्यान रखिए, म्युनिसिपल कमेटी के हेड को क्या कहते हैं? बी चेयरमैन कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 48, हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड? ऑप्शन ए सरपंच, बी चेयरमैन, सी चीफ मिनिस्टर, डी मेयर। सो राइट ऑप्शन इज मेयर। स्टूडेंट्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को, कॉर्पोरेशन वर्ड को ध्यान रखना है, कॉर्पोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता है और म्युनिसिपल कमेटी के हेड को चेयरमैन कहा जाता है। एंड द हेड ऑफ द विलेज पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। क्वेश्चन 49, अ मंडल कॉन्स्टिट्यूट्स? ऑप्शन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी नॉन गवर्नमेंट, ए बी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी ट्रेड यूनियन, डी ग्राम पंचायत। सो राइट ऑप्शन इज डी ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 50, द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन सिग्निफाई? डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब था एक ही जगह पावर का इकट्ठा होना, और डिसेंट्रलाइजेशन का होना पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। Option A, the 3-tier government at the urban level, B, the 2-tier government at only rural level, C, power taken away from central and state government and give to the local government at both the urban and rural level, D, none of these. So right option is C, power taken away from the central and state, पावर को सेंटर और स्टेट से लेकर थर्ड लेवल लोकल गवर्नमेंट को बांट देना, ताकि अर्बन और रूरल लेवल का भी डेवलपमेंट हो सके। सो राइट ऑप्शन इज सी। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फेडरलिज्म चैप्टर के करवाए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। Thanks for watching my video.